Hello students, welcome to online classes of Kerala Public School. This is me Narendra Kumar and I welcome you here. As you know, we are doing chapter number 13, that is surface area and volume of class 9 mathematics. So we will continue it today, and in this series today we will discuss about cylinder, a surface area and volume of cylinder, and we will solve some questions based on this concept. So let's start. In previous video we have done exercise 13.1, which is based on surface area of cube and cuboid. Also we have discussed volume and surface area of cube and cuboid. A solid is one of the most basic curvilinear geometric shape. The surface formed by the point at a fixed distance from a given line segment, the axis of the cylinder, and the solid enclosed by the surface and two planes perpendicular to this axis is called a cylinder. Let me show you the 3D figure of this cylinder. Now we are going to draw a 3D figure of cylinder. So let's start. First of all, I will select the cylinder from the menu and we will put 2 points, as you can see, and now we will put the radius. Let me put that is equal to 2 unit. So now you can see there is a cylinder. Okay, and let me hide. Also let me tell you one thing. Now you can see that this is a cylinder. Let me rotate it. As you can see, this is the first top which you can see on here, and this is the base which is also circular, and let me show you its height. This is called the height of this cylinder. Okay, that is represented by h. So we can see that here we have two circular faces, one of them on top and second one on base, and the whole area is called total surface area, which include area of two circular bases plus curved surface area. Okay, so this is the 3D representation of a cylinder. Got it? Now we will discuss that how to get the formula to find curved surface area of a cylinder and total surface area of a cylinder. Thereafter we will discuss how to get formula to find volume of a cylinder. Okay, now let's discuss about surface area of a right circular cylinder. तो सबसे पहले हम ये जो वर्ड्स आपको अभी मिला है राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसके बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे. यहाँ पे आप कुछ इस तरह से सोच लीजिए कि ये जो फिगर दिखाया गया है ये कोई एक ₹5 का कॉइन है. गॉट इट? और इस तरह से हमारे पास बहुत सारे कॉइन्स हमने एक दूसरे के ऊपर रख के एक फिगर को तैयार किया है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये हमारा क्या बन जाएगा, इस फिगर का हाइट बन जाएगा. और ये जो फिगर फॉर्म होके आई है ये क्या है, सिलेंडर है. गॉट इट? और इस तरह की फिगर जो है ये ही हमारी क्या बनेगी, राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म होती है. गॉट इट? क्योंकि इसमें सारे कॉइन्स जो हैं वो वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं. ठीक है, और जो बेस के साथ में किस तरह कौन सा एंगल बनाते हैं, जो राइट एंगल बनाते हैं. गॉट इट? तो इसका जो बेस है वो सर्कुलर है और एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल बनाते हुए हमने क्या रखे हुए हैं, बाकी कॉइन्स को रखा हुआ है. तो इसलिए ये जो शेप है वो क्या कहलाती है, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहलाती है. अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह की शेप एक राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होगी. अब सबसे पहले फिगर 13.7 का ए पार्ट देखिए. ये फिगर जो है आप देख सकते हैं कि ये एक सर्कुलर फिगर तो है, बट राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो हम बात कर रहे हैं उसको फॉर्म नहीं करती है.
और इसका रीज़न ये है कि अगर ये जो हम कॉइन्स मान के हम चल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो कॉइन्स रखे गए हैं वर्टिकली, वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाते हुए नहीं रखे गए हैं। गॉट इट। इनके बीच में स्लोप आया हुआ है, जिसकी वजह से ये फिगर जो है वो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं बनेगी। समझ गए बच्चे? अभी एक बार फिगर 13.7 का बी पार्ट भी देखिए। ये फिगर भी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर को फॉर्म नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि इसका जो बेस और टॉप आप देख पा रहे हैं वो एक सर्कुलर फॉर्म में नहीं है। दैट मीन्स वी कैन से इफ वी हैव ए सिलेंडर with a non-circular base, as you can see in figure 13.7 in B part, then we also cannot tell that it is a right circular सिलेंडर। तो बच्चे अभी आपको समझ आ गया होगा कि राइट सर्कुलर सिलेंडर जहाँ भी ये वर्ड्स यूज किया जाएगा वहाँ पे आप समझेंगे कि वर्टिकली है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए कॉइन से बना हुआ ये फिगर है। गॉट इट। और इसके साथ में जो हमारा बेस है वो क्या है? एक सर्कुलर बेस है। ओके। स्टैंडर्ड 9th में जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सर्कुलर जो सिलेंडर होंगे हमारे पास, वो राइट सर्कुलर सिलेंडर के ही बेस्ड हम उस पे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। गॉट इट। अभी बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर के बारे में। उसके लिए लेट कर लीजिए कि हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, और उसको हमने फोल्ड करके क्या बनाया है? एक सिलेंडर बनाया है। गॉट इट। और अगर रेक्टेंगुलर शीट है तो उसमें ये 2D में होना चाहिए, जिसमें एक जो है हमारे पास हम लेंथ और दूसरे यूनिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रेड्थ से रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट। लेकिन अगर इस बार हम ब्रेड्थ की जगह हाइट हम ले लें तो हमारा जो रेक्टेंगुलर शीट है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये है हमारा लेंथ और ये है हमारा हाइट। और क्योंकि हाइट जो है वो ब्रेड्थ की जगह आया है, तो अगर मुझे इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया फाइंड आउट करना है तो इसका एरिया कितना हो जाना चाहिए था? क्योंकि फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ तो हमारा एज इट इज़ है, जो ब्रेड्थ है वो किस में चेंज हो गया है? एच में चेंज हो गया है। तो इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया हुआ हमारे पास लेंथ इंटू इट्स हाइट। गॉट इट। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो फिगर हमें बनेगा वो कौन सा फिगर बनेगा? सिलेंडर। लेकिन यहाँ से एक चीज़ सोचने वाली है कि हमारा जो लेंथ था यहाँ से यहाँ तक, वो अब क्या बन गया है? वो इस टॉप, जो सर्कुलर टॉप आप देख पा रहे हो, उसका सरकमफ्रेंस बन गया है। दैट मीन्स लेंथ जो था वो किसके इक्वल आ गया? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर टॉप। और सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का? 2πr। समझ गए बच्चे? और हमारा जो हाइट था किसका? रेक्टेंगुलर शीट का, वो हाइट बन गया है किसका? हमारे पास सिलेंडर का। गॉट इट। तो इसका जो एरिया होना चाहिए था हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट का, वही एरिया किसके इक्वल होगा? कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा। किसके? सिलेंडर के। तो यहाँ से अगर हम मुझे कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, CS से अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो CS से किसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास? लेंथ इंटू हाइट। और क्योंकि लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक इस क्या बन गया था हमारे पास? सर्कुलर टॉप के लिए सरकमफ्रेंस बन गया था, तो इसलिए हम लेंथ का वैल्यू पुट करेंगे। तो CS से जो होगा हमारे पास, तो CS से आ जाएगा, CS से हो जाएगा हमारे पास 2πr इंटू एच, क्योंकि ये जो है वो लेंथ का वैल्यू है। तो दैट मीन्स CS से ऑफ सिलेंडर 2πrh। यहाँ से एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना होना चाहिए था? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ को रिप्रेजेंट किया गया है L से और ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट किया गया है H से। और जो लेंथ है हमारे पास वो क्या बन गया है? यहाँ से देखो, लेंथ ऑफ द शीट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर बेस विच इज इक्वल टू 2πr। गॉट इट बच्चे? जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो इसलिए आपके पास जो टोटल एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया, वो किसके इक्वल हो जाएगा? पैरामीटर ऑफ बेस ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 2πr मल्टीप्लाई h। सो वी गोट फॉर्मूला टू फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 2πrh। गॉट इट। आपको फिर नोटबुक में सिर्फ फॉर्मूले लिखने की जरूरत है, ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए बताई जा रही हैं। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं TS से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करके जो हमने फिगर बनाया था वो एक सिलेंडर ज़रूर बना था, लेकिन वो सिलेंडर क्या था? टॉप और बेस से ओपन था,
क्लोज नहीं था। तो अगर हमें उस राइट सर्कुलर सिलेंडर को क्लोज करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास दो सर्कुलर एंड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक सर्कुलर हमारा कहाँ लगेगा, जो एक सर्कुलर एंड होगा वो टॉप पे लगेगा और दूसरा सर्कुलर एंड जो होगा वो बेस पे लगेगा। समझ रहे हैं बच्चे? तो अगर हमें उसे प्रॉपरली कवर करना है तो उसके लिए हमारे पास देखो, जितना हमारे पास ये एरिया होगा सर्कुलर टॉप का, तो उतना ही एरिया हमें चाहिए उसको कवर करने के लिए। तो इसका मतलब ऊपर एक सर्कुलर टॉप जो आएगा उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। समझ गए बेटा? एक पाई आर स्क्वायर तो आएगा टॉप पे, जो सर्कुलर टॉप हमारे पास बना है क्लोज करने के लिए, और एक आएगा हमारे पास किस पे, बेस पे। तो उसका एरिया भी कितना होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। ये आएगा हमारे पास बेस पे। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। गॉट इट? जिसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, दैट टॉप एंड बॉटम ऑफ सिलेंडर आर ऑल्सो टू बी कवर्ड, देन we need two circles, okay, and in fact circular region, so each of radius r and thus having an area of pi r square of each, so giving us the total surface area that is equal to CSA कितना था हमारे पास, 2 पाई आर एच, अभी अभी हमने पढ़ा था, प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, दैट मीन्स प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चे, 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे, सो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर आ जाएगा, दैट इज 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट आर प्लस एच, जहाँ पे एच रिप्रेजेंट करता है किसको, हाइट ऑफ सिलेंडर, और आर रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ सर्कुलर और टॉप बेस। ओके, अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि कोई भी अगर 3D फिगर है तो उसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस जो है सिलेंडर का वो क्या है, सर्कुलर का, और सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, पाई है, तो आप इसको पाई आर स्क्वायर काउंट कीजिएगा, जो कि एरिया ऑफ बेस है, और मल्टीप्लाई हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एच से। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल आ गया है, पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस और हाइट को रिप्रेजेंट किया गया है एच से। गॉट इट बेटा? समझ गए होंगे आप सभी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 which is based on surface area of cylinder. Here we have exercise 13.2. Let me read question number first. In this question we are given the curved surface area, that means CSA, of a right circular cylinder of height 14 cm. height मिल गया बेटा 14 cm, और curved surface area कितना मिल गया हमारे पास, 88 cm square. Then what we need to find the diameter of base of the cylinder. So let us solve this question. आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्या दिया गया, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज एच इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड द CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? नाउ हमने लेट कर लिया कि जो बेस है उसका रेडियस कितना है, सर्कुलर बेस का रेडियस है r सेंटीमीटर, तो डायमीटर हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ रेडियस, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई r, जो r का वैल्यू आएगा उसका ट्वाइस कर देंगे, डायमीटर का वैल्यू आ जाएगा। गॉट इट बच्चे? जो आपको हमारे पास सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हमें दिया गया था उसको हम पुट करेंगे हमारे जो फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा था CSA ऑफ ए सिलेंडर का, दैट इज 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच को इक्वल पुट किया हमने 88 के। अब इसमें हम किसका वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, एच का, क्योंकि आर तो हमारे पास अननोन वेरिएबल है। सो पाई का वैल्यू सबसे पहले क्वेश्चन में बताया गया था कि पाई का वैल्यू जो है वो आप 22/7 लेंगे जब तक कि क्वेश्चन में स्टेट ना किया जाए। एक्सरसाइज के शुरू में ही आप देख पाएंगे जब आप अपनी बुक को ओपन करेंगे, एक्सरसाइज 13.2 को स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले ही आपको ये मेंशन किया गया है। सो वी गॉट 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर, और ये है एच का वैल्यू जो है 14, इसको इक्वल पुट किया हमने 88। ये 88 क्वेश्चन में गिवन था कि जो CSA है वो 88 है, तो यहाँ से हम आर का वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। उसके लिए हम ट्रांसपोज करेंगे 2 को, 22/7 को और 14 को, तो हमें क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई
2। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इसलिए डायमीटर जो आ जाएगा वो आ जाएगा रेडियस का ट्वाइस करके, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। गॉट इट? So this is the answer for first question. Now let us discuss about question number second. और देखो ये चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जब हम सॉल्व कर रहे थे कि पाई का वैल्यू जो है वो आप 22/7 पुट करेंगे जब तक कि स्टेट नहीं किया जाता पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर हम बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल सीट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड और द सेम। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की है कि हाइट तो मीटर में दिया गया है और डायमीटर किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले तो आप इनको कन्वर्ट करके सेम यूनिट में आप इनको कन्वर्ट कर लेंगे। गॉट इट? तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं और देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। आप देखिए कि अगर हमें एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है तो हमारे पास क्या होने चाहिए, हमारे पास दो कवर होने चाहिए जो सर्कुलर शेप में होने चाहिए, क्योंकि एक टॉप पे लगेगा और एक बेस पे लगेगा। साथ में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सीट होनी चाहिए जिसको फोल्ड करके हम क्या बनाएंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे। गॉट इट? तो ये आपको फाइंड आउट करना है। अब ये रेक्टेंगुलर सीट का जो एरिया होगा वो तो CSA के इक्वल होगा, और यहाँ से आप ये जो है हमारे पास टॉप और बेस पे लगने वाले जो राइट सर्कुलर एंड हमारे पास हैं, इनका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर से इसको निकालेंगे, इसका ट्वाइस कर देंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं CSA। उसको करने के लिए हम डायमेंशंस जो हमें दिए गए थे उनको हम सेम यूनिट में कर लेंगे। सो डायमीटर कितना दिया गया था, 140 सेंटीमीटर। रेडियस दिया गया हमारा 70 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी ये गिवन है डायमीटर, इससे हम रेडियस को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 70 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 70 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास आ जाएगा 0.7 मीटर। इसके साथ में हाइट जो दिया गया सिलेंडर का वो कितना दिया गया है, 1 मीटर। अब आप इसका जो टोटल एरिया आपको फाइंड आउट करना है उसको दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो आप CSA प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ स्क्वायर दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कुलर बेस 2 पाई आर स्क्वायर से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं TSA का। तो TSA हमारे पास कितना होना चाहिए, TSA होना चाहिए 2 पाई आर इन अ ब्रैकेट H प्लस आर। गॉट इट? तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास किस किस का वैल्यू हमें पुट करना है, R और H का। साथ में पाई का वैल्यू हम 22/7 ही पुट करेंगे। सो वी गोट 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.7 इंटू ब्रैकेट 0.7 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा बेटा, 7.48 मीटर स्क्वायर। गॉट इट? सो हमारे पास जो टोटल एरिया हमें चाहिए मेटल सीट का एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए, जिसके डायमेंशंस क्वेश्चन में मेंशन थे, वो है हमारे पास 7.48 मीटर स्क्वायर। गॉट इट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड. Let me read question number third. In this question we are given a metal pipe is 77 meter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter and the outer diameter being 4.4 centimeter. See figure 13.1. Find its inner कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। तो बेटा इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आपने एक पाइप देखा होगा, तो उस पाइप में आप देख सकते हो कि वो पाइप एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में होता है, लेकिन उसमें थिकनेस होती है। तो उस थिकनेस की वजह से हमारे पास क्या क्या हमें मिल सकता है, इनर रेडियस और आउटर रेडियस हमें मिल जाती है। मैं इसका फिगर शो करता हूँ आपको। इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये जो फिगर है इसमें ये वाला पार्ट जो है ये थिकनेस है, ओके, जिसको मैं सेट कर रहा हूँ। ये टोटल पार्ट जो है ये थिकनेस है, जिसकी वजह से हमें क्या मिला हुआ है, इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस हमें मिले हुए हैं। गॉट इट? क्योंकि आपको बताया गया है कि जो इंटरनल रेडियस है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि जो डायमीटर दिया गया था वो कितना था बेटा, 4 सेंटीमीटर था। तो 4 सेंटीमीटर का हाफ करेंगे, रेडियस मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। और एक्सटर्नल रेडियस जो आपको दिया गया है वो कितना है, वो है 2.2 सेंटीमीटर, ओके। क्योंकि जो आपको एक्सटर्नल डायमीटर दिया गया वो था 4.4 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ करेंगे 2.2 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। तो इस बार आपके पास 2 सर्कल तो हैं ही हमारे पास। इसके साथ में आपको ये जो एरिया जो हमने सेट किया है, मैं फिर से कर देता हूँ एक बार।
ये एरिया जो आप देख पा रहे हो ये थिकनेस में काउंट किया जाएगा। तो दो सिलेंडर आपके पास बन गए हैं, एक इंटरनल रेडियस के साथ बना है और एक्सटर्नल रेडियस के साथ बना है। गॉट इट। तो अगर आपसे पूछा जाता है कर्व सरफेस एरिया, गॉट इट, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे और टीएसए कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर में देखते हैं। लेंथ ऑफ दिस पाइप h इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर गिवन था। इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो इनर रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का हाफ करके। सो इनर कर्व सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, इनर CSA के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2πRH और उसमें r जो लेंगे वो इनर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2 जो कि r का वैल्यू है मल्टीप्लाई 77 दैट इज इक्वल टू 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। तो ये तो आ गया हमारे पास इनर कर्व सरफेस एरिया। ओके, अभी आउटर रेडियस का यूज करते हुए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आउटर सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे किसका, जो सिलेंडर आपको गिवन है। तो लेंथ हमारा जो है पाइप का हाइट वो 77 ही रहेगा। डायमीटर आपको दिया गया था 4.4 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी हमारे पास कैपिटल R। दैट मीन्स ये रेडियस है जिसको आप एक्सटर्नल रेडियस बता रहे हैं। गॉट इट। तो इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। अभी हम फाइंड आउट करेंगे आउटर सरफेस एरिया। फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा 2πRH, लेकिन R जो है वो एक्सटर्नल रेडियस इस बार हम लेंगे। सो ये आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 22/7। पाई का वैल्यू जो है, R का वैल्यू इस बार क्या पुट किया हमने 2.2 सेंटीमीटर और हमारे पास h का वैल्यू है 77 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, सिंप्लीफाई करके हमारा जो आंसर मिलेगा वो आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा आउटर कर्व सरफेस एरिया है। ओके, अभी अगर हम इस पाइप के टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इनर CSA, आउटर CSA जो हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अभी हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है सर्कुलर रिंग का एरिया। अगर आप इस फिगर को फिर से देखते हैं, सो ये जो दो सर्कुलर रिंग आप देख पा रहे हैं, एक ये और इसके साथ में जो इसके अपोजिट एंड पे एक और सर्कुलर रिंग बना हुआ है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि ये वाला स्पेस तो हमारा ओपन है। गॉट इट। तो ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें दो सर्कल बने हुए हैं, एक आउटर सर्कल है और एक इनर सर्कल है। तो बेटा ये सर्कुलर रिंग का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप आउटर सर्कल जिसको हम कैपिटल R रेडियस लेके सॉल्व कर रहे हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे इनर सर्कल का एरिया। गॉट इट। और मैंने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमारे पास दो एंड पे दोनों सर्कुलर रिंग बने हुए हैं, एक यहाँ पे बना हुआ है और दूसरा यहाँ पे बना हुआ है। गॉट इट। तो इसमें से आप देख सकते हो कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2π कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2π और इन अ ब्रैकेट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये है हमारे पास सर्कुलर रिंग का एरिया। 2 से मल्टीप्लाई मैं फिर से बता देता हूँ, इसलिए मैंने किया है क्योंकि यहाँ पे दो सर्कुलर रिंग आप देख पा रहे हो। ओके बच्चे, so now let's find the area of these two circular rings. So that means area of two base that is equal to 2 multiply area of outer circle minus area of inner circle, जो मैंने अभी अभी अब आपको बताया। तो outer circle का एरिया पाई आर स्क्वायर और इनर सर्कल का एरिया पाई स्मॉल r स्क्वायर से हम निकाल रहे हैं। सो ये आ जाएगा 2π इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, जो अभी अभी मैंने आपको शो किया था। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे पाई का, कैपिटल R का और स्मॉल r का। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 इन अ ब्रैकेट 2.2 स्क्वायर एंड माइनस 2 स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 44/7 और स्क्वायर ऑफ 2.2 दैट इज इक्वल टू 4.84 माइनस स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें एरिया मिलेगा वो हो जाएगा हमारे पास 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पाइप एंड दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इनर सरफेस एरिया, outer surface area and area of two circular rings. Got it? तो inner surface area हमारे पास आया था 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, outer surface area आया था 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और area of two circular rings जो आए हैं वो कितना है हमारे पास 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया आ गया हमारे पास 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
आज के वीडियो में बेटा इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, जो कि अपलोड होने में फिर प्रॉब्लम आती है। तो आज आपके लिए आपको प्रैक्टिस वर्क दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 से लेके, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 होगा आई थिंक। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 ही है। क्वेश्चन नंबर 11 तक आप सॉल्व करके देखिए। ये सिर्फ बेस्ड है CS से और TS से ऑफिस सिलेंडर के। वॉल्यूम यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, वॉल्यूम के लिए आगे एक्सरसाइज आएंगी, उनमें हम वॉल्यूम सॉल्व करेंगे। तो आप आज क्वेश्चन नंबर 4 से लेके और क्वेश्चन नंबर 11 तक ये 8 क्वेश्चंस आज आप सॉल्व करके देखेंगे, और इनमें से जो भी डाउट बनता है वो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से 11 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन आपके हो चुके होंगे हम उनको स्किप कर देंगे। गॉट इट? सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे हैप्पी, बी सिक्योर, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।